Hello guys, welcome back to my channel. For those who don't know me, I am Mariam Shahood, a third year MBBS student at KIMS Bhubaneswar, that is Kalinga Institute of Medical Sciences Bhubaneswar. And this video is going to be all about it only, as most of you wanted to know about the institute, how it works, how it functions, what is the fees, how is the hostels. It's all a combined video. But oh god, ignore the noise behind because right now I am at my home and that's why there's a lot of noise around this area. So I already made the video a long back, a year ago, but there are a few changes that I had to add, and for your convenience I'm going to make a new video right now. So yes, so first of all, let's talk about the institute. The name is Kalinga Institute of Medical Sciences. It's in Bhubaneswar. It's located in the center of the city. It's almost 35 minutes from the airport and approx the same from the station. It's a deemed university, deemed medical university, and KIT as such is a deemed 2B university. As most of the medical college, it's also a co-ed medical college with a 250 strength. Your counseling here is done along with All India quota counseling. It's not a state quota counseling sort of. When you are doing the counseling for your government medical colleges, along with that, you pay a fees of about, what we paid was 2.5 lakh for the registration fees, which you get back after once you get registered into the college. This fees is given back to you into your account from which you sent it. So it's a refundable, totally refundable fees. और काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली द रिज़ल्ट अभी 1-2 दिन में निकल जाएगा नीट का. द आंसर की इज़ आउट. तो रिज़ल्ट के ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके 10 to 15 डेज़ बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाता है. So here it goes, very less time. All the best to everyone who are going to appear in counseling. I hope that you get the college what you want. So it was all about the college. Now let's talk about the fees. Her almost 3 years के बाद the fees gets revised. It was revised during our time. Firstly it was 16.5 lakhs, पर जब हमने admission लिया था it was revised to 18.5 lakhs. 2.5 lakh increment was there. I don't know about the last fees, must be 16 around, but हाँ हमारे टाइम पे 2.5 लाख का increment हुआ था in the tuition fees. सो हमारा अभी फ़ीस है जो अभी तक वही है, अभी कुछ रिवाइज़ नहीं हुआ. मे बी रिज़ल्ट के बाद रिवाइज़ हो जाए तो आई विल अपडेट इट ऑन दिस चैनल इटसेल्फ. तो अभी जो हमारा फ़ीस है इट्स 18.5 लाख ट्यूशन फ़ीस, 1.4 lakhs इज़ द हॉस्टल फ़ीस एंड 50,000 इज़ द मेस फीस जो अभी रिवाइज़ हुआ है. पहले इट वॉज 45,000 एनुअली, इट्स 50,000 एनुअली जो हमारा भी हो रहा है. ऐसे एज सच ये भी एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि ट्यूशन फ़ीस हर बैच का बढ़ता है. नो, इट्स नॉट दैट. जैसे अब जो ट्यूशन फ़ीस बढ़ेगा मे बी दिस ईयर और मे नॉट बी दिस ईयर, अगर अगले साल बढ़ेगा तो सिर्फ अगले साल के बच्चों का बढ़ेगा, अगले साल के बैच का बढ़ेगा. हमारा वही सेम स्टैग्नेंट रहेगा. हमारे सीनियर्स का 16 ही रहा, हमारा 18.5 हो गया. और जो नेक्स्ट बैच में भी आएगा इसका 20 और 21 जो भी होगा, वॉट एवर दे डिसाइड होगा, तो वो उनका बढ़ेगा. हमारा यानी जो कंटिन्यूस बैच है उसका नहीं बढ़ता है. The college has a great campus. I will say university has a great campus. कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का अलग से कोई ऐसा कैंपस नहीं है कि जो बहुत वो है. एज अ यूनिवर्सिटी दे हैव अ ह्यूज कैंपस. एवरीथिंग टू यू इज़ प्रोवाइडेड ऑन द सेम रोड. देयर इज़ अ किट रोड जो कॉलेज के हमारे सामने है. एवरीथिंग इज़ देयर, बी इट एनी आउटलेट, प्यूमा, वेरोमोडा और स्टारबक्स, करीम्स, वॉट एवर यू वॉन्ट, इट्स देयर मोस्टली. या तो फिर वहाँ से देयर आर मॉल्स साइड. सो ऐसे है सब कुछ. देयर इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेशन. तो एज सच कुछ कम्युनिकेशन इशूज़ हमें या आपको नहीं आएगा आगे जाके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉलेज, लाइक कैसा है, कहाँ पे लोकेटेड है. आई फॉरगॉट टू ऐड कि जो 18.5 लाख हमारा होता है ट्यूशन फ़ीस, 1.4 लाख होता है हमारा हॉस्टल फ़ीस. ये सब मैं एनुअली बता रही हूँ, नॉट सेमेस्टर वाइज. लाइक फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर थर्ड ईयर ऐसे. तो फिर उसके साथ हमारा 50,000 मेस फीस होता है. यू हैव टू ऑप्ट फॉर मेस. इट्स नॉट एन ऑप्शन. इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर हॉस्टल यू हैव टू ऑप्ट फॉर मेस टू. एंड येस यू कैन ऑप्ट आउट फॉर द हॉस्टल टू, कि अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड विद दैम. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको हॉस्टल ही में रहना है. सो या 18.5 lakh is the tuition fees, 1.4 lakh is the hostel fees and 50,000 is the mess fees. And during the admission procedure there is a one time fees that is 75,000 for miscellaneous. पर उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं. सो इट्स टोटली फाइन. आपकी 4 साल की बुक आपको कॉलेज से मिलेगी.
और सबके ऑथर्स बहुत स्टैंडर्ड वाले बुक्स होते हैं. इट्स नॉट कि कोई भी एनी बुक दे दी गई है आपको. जो बुक्स फॉलो होती है एनएमसी के थ्रू आपको वही बुक दी जाती है. एंड यू गेट अ लैपटॉप. हमें मिला था लेनोवो का फ्लिप 5 i5. आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट यूज़ दैट लैपटॉप. इसलिए यू गेट अ गुड लैपटॉप. अभी शायद HP का दे रहे हैं, हमारे टाइम पे लेनोवो का फ्लिप मिल रहा था. सो दैट इज़ द केस. वो इतना आपको फीस, इससे एक भी पैसा ऊपर नीचे आपको फ़ीस कभी नहीं लगता है. देयर इज़ नो सच फाइन ऑफ 25,000 और एनी हिडन चार्जेस एज सच. आई हैव स्पेंड 3 years इन दिस कॉलेज एंड आई कैन एटलीस्ट से दैट कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है. वट एवर इट इज़ ऑन देयर पेज कि ये आपको देना है. Now let's talk about hostel. Hostel is within the campus. For first years maybe we have seen कि hostel आपका आउट ऑफ द कैंपस दिया जा रहा है, जो एक PG हॉस्टल है. पर आप बिकॉज मे बी थोड़ा सा सीनियर्स परेशान ना करें, ऐसा कुछ होता नहीं है. बट फिर भी फॉर द प्रिकॉशन दे आर गिवन अ डिफरेंट हॉस्टल दैट इज़ आउट ऑफ द कैंपस, जिसका ट्रांसपोर्टेशन आपका बस के थ्रू होता है. दे पिक यू अप, दे ड्रॉप यू फ्रॉम द कॉलेज, वॉट एवर यू वॉन्ट. आपको कोई भी सिक्योरिटी इशूज़ नहीं होते हैं वहाँ. बीइंग अ गर्ल, द मेजर कंसर्न ऑफ मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इज़ कि हाउ इज़ द सिक्योरिटी. हर एक गेट पे देयर आर गार्ड्स, देयर आर वार्डन्स. सो ऑल इन ऑल देयर इज़ नो सिक्योरिटी इशूज़. एंड सेकेंडली, और सेकेंड ईयर से आप लोग विद इन द कैंपस आ जाते हो. मे बी आपके सीनियर्स के साथ, मे बी जूनियर्स के साथ आप लोग एक बिल्डिंग में रहते हो. राइट नाउ जिस बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ उस बिल्डिंग में 20 बैच विच इज़ नाउ एन इंटर्न, 21 बैच विच इज़ इन 4th year एंड 22 बैच MBBS बैच. ये तीनों बैच रहता है इन गर्ल्स. एंड बॉयज़ राइट नाउ 21 बैच, 22 बैच एंड 23 बैच आर लिविंग टुगेदर. एंड द 24 बैच जो है अभी, उन्हें एक डिफरेंट हॉस्टल दिया गया है. दैट्स अ कोविड हॉस्टल बट नॉट कोविड, देयर इज़ अ पार्टीशन. तो वो उनका वैसा हॉस्टल है. बट दे विल बी शिफ्टिंग वेरी सून इन द कैंपस. एंड द मेजर कंसर्न वॉट इज़ द हॉस्टल टाइमिंग. आप जब एंटर करोगे कॉलेज तो फॉर फर्स्ट 2 months आई थिंक सो, लड़कियों के लिए द हॉस्टल टाइमिंग इज़ 5 PM कि आपको 5 बजे वापस आ जाना है. ऐसे कुछ आप 5 बजे तक कहीं भी रहो, वो उसका इशू नहीं है. बट आपको 5 बजे हॉस्टल के अंदर रहना है. दैट इज़ अ थिंग जो थोड़ा सा है फॉर 2 months. लड़कों के लिए वो भी नहीं है ऑनेस्टली. बट देयर इज़ अ टाइम कि 10 बजे के बाद यू कांट एंटर द हॉस्टल और फिर आपके घर पे कॉल चला जाता है. बिकॉज इट्स फाइन ऑल्सो कि 10 बजे नहीं. लड़कों का ये रूल नहीं है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है कि हाँ 10 बजे तक आपको अंदर रहना है हॉस्टल के. एनी हाउ पेरेंट्स से साइन करा के भी आप द मोस्ट 10 बजे तक ही बाहर रह सकते हो. दैट्स द केस. जो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में शायद इन टाइम नहीं होता है, पर इस कॉलेज में ये इन टाइम का थोड़ा इशू है बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सिटी. तो उनको थोड़ा सा इस प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है. Even if you get sick, wardens are very kind to take you to the hospital with the ambulance. Even at 2 in the night, 3 in the night, you give them one call and they are at your doorstep कि वो तुम्हें वहाँ से हॉस्पिटल लेके चली जाएंगी. तो there is no issue in that. Wardens are friendly. Now let's talk about the ragging thing, जो बहुत ही मेजर इशू होता है हर मेडिकल कॉलेज का. But honestly, I never or we never experienced anything as such. It's just like you have to respect your seniors. It's not a friend relationship, but there's a senior-junior relationship. You have to call them sir and ma'am, but they will be your support system throughout your years. They will help you out throughout. You can just ask your immediate seniors कि ऐसा क्या क्या है. They'll let you know that how seniors help you. So it's just up to that कि हाँ तुम्हें उन्हें sir ma'am बुलाना है. तो whenever you see them, you have to greet them, but nothing more than that. बिकॉज वंस यू डू दैट आफ्टर 6 to 7 months तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि किस सीनियर्स से तुम्हें कैसे बात करनी है. एंड देन यू विल हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप विद सम सीनियर्स, वेरी गुड रिलेशनशिप विद अदर्स. सो इट गोज़ दैट वे. सो प्लीज़ बी वेरी जनरस एंड काइंड टूवर्ड्स देम. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. There is no ragging. Like I mean, no ragging means no ragging. They just ask your names कि क्या नाम है, कहाँ से हो. That's it. Now let's talk about how is the pattern of examination throughout the year. You have 3 internals at every 3 months and then 1 profs. That is the final exam to cross that year. Suppli लगती है. Like if you don't study at all, you will get supplis. That's it. Almost 20 to 25 बच्चों की सप्ली लगती है. Those who don't study at all. You will get a mentor every year. That must be a professor of your college. Right now I'm having my mentor who is the professor of ophthalmology. So it goes that way कि उससे पहले साल I was having a mentor who was a professor of microbiology. उससे पहले I was having a mentor who was a professor of physiology. तो हर ईयर में भी हर ईयर आपका मेंटर चेंज होता है. लाइक
विथ एवरी सब्जेक्ट। लाइक आपका अगर फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट है तो वो 3 डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर्स मिलके आपको मेंटरशिप देंगे, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मी टेल यू द बेड डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर टोटल ऑफ 750 बेड्स इन Kalinga Institute of Medical Sciences. I will share a PDF here, or just a picture here that will tell you. In general medicine we have 150 beds, pediatrics we have 90 beds, TB and respiratory medicine we have 30 beds, psychiatry we have 30 beds, dermatology we have 40 beds, general surgery we have 150 beds, orthopedics we have 90 beds, ophthalmology 40, ENT 40, and obs gynae we have 90 beds. That sum up to 750 beds in the hospital. The patient flow is too good because the hospital is in the center of the city, इसलिए patient flow बहुत अच्छा होता है, जिससे आपको clinical exposure बहुत अच्छा होता है, जो बहुत सारे private medical college में नहीं हो पाता है due to some reason, but as यहाँ पे आपको पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा मिलेगा, तो इस वजह से आपको एक्सपोजर इज़ नाइस, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, योर प्रोफेसर्स आर फ्रेंडली, यू कैन जस्ट गो टू देम एंड आस्क देम टू हेल्प यू, योर सीनियर्स आर वेरी फ्रेंडली, दे विल हेल्प यू आउट, मेक अ गुड रिलेशनशिप विद इंटर्न्स, PGs, so that's how it goes. So there are a total of 750 beds, patient flow is nice, so there is nothing to think about it. Now the thing comes up, language barrier. There is no language barrier as such. Yeah, जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो पेशेंट्स में मोस्टली आपको उड़िया मिलेंगे, बंगालीज़ मिलेंगे, तो आपको थोड़ा इशू हो सकता है, पर आपके साथ आपके दोस्त रहते हैं, वो आपको समझा सकते हैं जो उड़िया होंगे में भी, लेकिन ऐसा सच कुछ लैंग्वेज इशू नहीं होता है कि वहाँ के लोग आपको फोर्स करेंगे, लाइक वाई आर यू नॉट स्पीकिंग उड़िया, वाई आर यू स्पीकिंग बिहारी, यूपी। आई माई सेल्फ इज़ फ्रॉम बिहार, मेरे को ऐसा कभी फेस नहीं हुआ, मेरी रूम पार्टनर उड़िया है, बट वी टॉक इन हिंदी, दे आर नॉट फोर्सिंग देयर लैंग्वेज ऑन यू, बट इट्स बेटर इफ़ यू लर्न, क्योंकि आप पेशेंट से इंटरैक्ट, मैंने अभी तक नहीं सीखा है, पेशेंट से इंटरैक्ट करने में बहुत आसानी होती है, कुछ चीज़ें मैंने सीखी है, गोटे दीता टीमता, जस्ट दिस, नथिंग मोर देन दैट। तो ऐसा कुछ लैंग्वेज आप पे इम्पोज नहीं किया जाता है कि यही बोलो, यही करो, नथिंग एज सच। अगेन मेंशनिंग, देयर आर नो हिडन चार्जेस, आपसे कोई हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट कि आपको क्या क्या फ़ीस देनी है, बस ये इतना ही फ़ीस देना, दैट्स इट। और मैं क्या बता सकती हूँ, ये मैंने कॉलेज के बारे में बता दिया, हॉस्टल के बारे में बता दिया, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, रैगिंग एंटी रैगिंग के बारे में बता दिया, हॉस्पिटल्स के बारे में बता दिया। लेट मी गिव यू जस्ट रोड मैप कि कैसे होता है सब कुछ। हमारे टाइम पे तो 8 to 4 क्लासेस होते थे हमारी फर्स्ट ईयर में, बट अगेन इट्स 9 to 5 नाउ। सो 9 से 10 आपका थ्योरी क्लास होगा, फिर 10 से 1 जो होता है उसमें एक 1.5 में बैच को डिवाइड कर दिया जाता है। एक जो होता है फर्स्ट बैच वो जाता है DH, दैट इज़ डाइसेक्शन हॉल, around 10 to 1, and one goes to physiology or biochemistry lab in 10 to 1 slot, and after the break there is one break from 1 to 2 p.m. ब्रेक के बाद एक बैच जाता है DH जो 1.5 to 250 है, और जो बचा हुआ एक बैच है वो जाता है या तो बायोकेम, फिजियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। उसके बाद 2 से 5 यही होके ख़त्म हो जाते हैं हमारे क्लासेस, दैट्स इट। बहुत लंबा टाइम होता है, इट्स नॉट दैट्स इट, बट हाँ ऐसे ही होता है सब कुछ। 8 से 9, 9 से 10, हाँ एक आपका थ्योरी क्लास होगा, आई थिंक सो 2 से 3 एक थ्योरी क्लास होगा, फिर 3 से 5 आपका फिजियो या DH होगा, क्योंकि हमारे टाइम में लंच के बाद डायरेक्टली हम लोग जाते थे, क्योंकि हमारा 8 से 4 होता था, 9 से 5 नहीं। सो दैट्स इट। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन होवरिंग अराउंड कि क्लास में iPad यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर। बहुत सारे प्रोफेसर्स आर वेरी कूल कि हाँ तुम iPad पे नोट्स बनाओ, कॉपी पे नोट्स बनाओ, बट सम ऑफ देम आर देयर जो कहते हैं नो, व्हेन आई एम टीचिंग डोंट टेक आउट योर फोन्स एंड iPads। सो दैट्स ऑल अबाउट टैब एंड फ़ोन यूजेस इन द क्लास, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर, इट्स टोटली फाइन। सब कुछ बहुत ही एक्सेसिबल है, आपका ओला उबर आपके हॉस्टल गेट तक आता है, आपका ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, वॉट एवर इट इज़, एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल, सब कुछ आता है, देयर इज़ नो सच इशू। जो भी भुवनेश्वर में है वो आपके हॉस्टल तक आ जाएगा, दैट्स इट। और देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, आप ये कपड़े नहीं पहन सकते, वो आपको जो पहनना है, आपको जहाँ जाना है जाओ, पर 10 के अंदर हॉस्टल आ जाओ, दैट्स इट। 10 के अंदर हॉस्टल आप आ गए हो, पेरेंट्स को साइन लेके, मोस्टली 7 to 8, हाँ आप आ गए हो तो नो वन इज़ गोइंग टू गिव अ डैम कि तुम क्या कर रहे हो।
हाँ, but if you face any security issues yourself, you can just give a call and they will be there for you. बहुत रूमर्स से बहुत सारी बातें उड़ी हुई हैं, but this is the thing. I have faced it, I have gone through it, तो मैंने देखा है. About campus life, yes, there is campus life. There's a lot to enjoy. Depends on you कि तुम कितना enjoy करना चाहते हो. बहुत कम से लेके बहुत ज़्यादा तक कर सकते हो. हर साल there's a Kid Fest, there's a Kims Fest. So in Kid Fest there are stars called, singers are called. In Kids Fest there are no stars or singers called, but हाँ there's a whole week of fest जो आपके seniors ही organize करते हैं. Like this year this will be 2021 batch which is going to organize the Kims Fest. आपका KPL होता रहता है, KFL होता रहता है, फुटबॉल लीग, बास्केटबॉल लीग, ये सब all through the year चलता रहता है. There is everything to entertain you. There is a sports complex in Kims itself. Kims का अलग सा एक sports complex है, Kims का अलग से football ground है, swimming pool अलग सा है, gym अलग सा है. So everything सब कुछ kids से differentiate करके अलग से आपके लिए है. हाँ, yeah, in gym I think so you have to pay 300 to 350 every month gym जाने के लिए. And there's a swimming pool, you have to get yourself registered there. So you have cultural programs, everything is there in the fest. You can go join it. You have debates, you have declamations. सब फेस्ट में सब कुछ होता है. Like everything is there. You enjoy a lot. So it totally depends on you how you want to spend your life there. That's it, I think so. If you have any more questions about Kalinga Institute of Medical Sciences, you can drop it down. I'll make a short, I'll answer you right there. You can go and check out my other videos too. You'll get a lot more information. I have posted a video of the whole campus tour of Kalinga Institute of Medical Sciences. If you haven't seen it yet, go check it out. It's a very detailed video. You won't get it anywhere else. So go check it out. And if you haven't subscribed my channel yet, please take a moment and subscribe my channel. That's all about it. Any more issues, any more questions, or any revisions in the fees, I'll just upload it on the shorts. Or if you have any questions, just drop it down. I'll make a short of all the questions and answer you guys. Thank you for waiting. Bye bye.